बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ 15 ਮਾਰਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਔਰ ਮਗਰਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਫੈਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, सन 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਹ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਆਪਣੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਨਸਾਨ, ਔਰਤ ਇੰਤਹਾਈ ਪਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸ ਪਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਇੰਤਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਉਹ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਰਸਤੂ, ਅਫਲਾਤੂਨ, ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਇੰਤਹਾਈ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਮਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਯੂਨਾਨੀ ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ 3 ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਕਿੰਗ, ਫੌਜ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ, ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫੌਜ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਲਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਗੈਮੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਭੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਪਿਲਾਣੇ पे झगड़ा। ਅਸੀਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। अरब और अजम तकसीम, हिंदुस्तान ईरान तकसीम,
पूरी दुनिया विच तशद्दद और दहशत की फैज़ा सी। साडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़हूर हुंदा इस दुनिया दे विच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आंदे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़हूर जदों इस दुनिया विच हुंदा है ते आप दुनिया दे विच इस्लाम नूं एक ज़हमत नहीं रहमत दा मज़हब लैके आंदे और रहमतुल लिल आलमीन दा लक़ब पांदे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान दी इज्जत और तकरीम उस दर्जे ते लै गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे दा तवाफ करदियां काबिन कहंदे ने कि ए काबा तेरी तकरीम तेरी इज्जत बहुत आला है, लेकिन एक इंसान की इज्जत और तकरीम तेरे तो भी आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग जिहड़े जुल्मो जबर दा शिकार सन, उन्हां इतने बुलंद दर्जे ते लै जाते हैं कि उन्हां दा भी मुआशरे दे विच एक आला मुकाम पैदा करते हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े सन कोई सहाबा दे कोल, एक गरीब आदमी कोलों गुजरदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे कोलों पुछदे ने कौन है? सहाबा कहंदे ने या रसूल अल्लाह, ये मुआशरे का एक बड़ा कमतर इंसान है, इसकी मुआशरे दे विच कोई इज्जत नहीं। अगर ये कोई बंदा गल करे तो इसकी गल नूं कोई संजीदा नहीं लैंदा, अगर किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश नहीं मनी जाती। थोड़ी देर बाद एक होर इंसान कोलों गुजरदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछदे ने कि यह इंसान कौन है? कहंदे ने कि या रसूल अल्लाह, ये मुआशरे का बड़ा अहम शख्स, बड़ा शरीफ आदमी, बड़ा अमीर आदमी। अगर ये कोई गल करे तो सारे लोग इसकी गल बड़े ध्यान नाल सुनते हैं। अगर ये किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश नूं लोग फौरन तस्लीम कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा गौर नाल सुनो, है वो शख्स जिसनूं तुसीं कह रहे हो कि कमज़ोर, ये मेरे और मेरे अल्लाह की नज़र च बहुत अहम शख्स, ये वो इंसान है जिहड़ा अल्लाह के अगे किसी चीज़ की सिफारिश करे तो अल्लाह उसकी सिफारिश तस्लीम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पिछया तबका जिहड़ा इस दुनिया दे विच सी, उसनूं इतना आला मुकाम दे दिता और उसकी इज्जत और तकरीम उस दर्जे ते लै गए कि जिसने एक बड़े खूबसूरत मुआशरे की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्लो गारत नूं इंतहाई बुरा तसव्वुर किया। कत्ल, किताल, दहशतगर्दी दा ते तसव्वुर नहीं इस्लाम दे विच। कुरान ने क्या है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अज दे दिन तक 21वीं 22वीं सदी दे विच भी दुनिया की कोई मुआशरत कत्ल और दहशतगर्दी के खिलाफ इतना वड्डा फतवा नहीं दे सकी, इतनी वड्डी फिलॉसफी नहीं दे सकी। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम फसाद का मजहब नहीं है, इस्लाम तशद्दुद का मजहब नहीं है, इस्लाम कत्लो गारत का मजहब नहीं है, इस्लाम अमन का मजहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जिसके हाथ और जिसकी जुबान के नाल दूसरा इंसान महफूज नहीं। नाजरीन, इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने ना सिर्फ मजलूम के हकूक को महफूज किया, बल्कि इसने मुआशरे के हर तबके महफूज किया। दुनिया की तारीख दे विच औरत को अगर कोई हकूक दे रहा है तो पहली दफ़ा इस्लाम दे रहा है। इस्लाम ने औरत को हर शक्ल दे विच इतना बुलंद कर दिता, वो बीवी होवे, वो बेटी होवे, वो माँ होवे, इतना बुलंद कर दिता कि इस्लाम की मुआशरत दे विच जिंदगी का हासिल अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के नबी के अहकामात को मनना, और अगर सारी जिंदगी तुसी दीन के अहकामात के मुताबिक गुजार दो तो रिवार्ड के तौर पर अल्लाह तुहानू जन्नत देंदा है। औरत के मुकाम को इतना बुलंद किया इस्लाम ने कि जन्नत नूं भी औरत के पैरों के थले रख दिता। इस्लाम वो पहला दीन है जिसने इंसानियत की हिस्टरी दे विच पहली दफ़ा औरत को तालीम का हक दिता, तालीम को औरत पर फर्ज किया। इस्लाम वो पहला दीन है, पहला मजहब है जिसने दुनिया की तारीख दे विच औरत को पहली दफ़ा
जायदाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸਟ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ? ਉਹ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਵੀਮਨਸ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ सोसाइटी, लेकिन इस्लाम ने पहली दफ़ा औरत को हकूक दिते। नाजरीन, इस्लाम ने एक ऐसी मुआशरत पैदा की जिहदे विच मुसावात सी। इस्लाम दुनिया का पहला मजहब है जिसने आने ही कहा कि किसी काले गोरे उत्ते कोई फौकियत नहीं, किसी अरबी अजमी ते कोई फौकियत नहीं। मगरब जिहड़ा इंसानी हकूक की गल कर रहा है, उसने तो इकवामे मुतहदा के चार्टर दे विच 1960 के लगभग ये लिखा कि काले को गोरे पर कोई बरतरी नहीं, लेकिन इस्लाम ने तो ये तसव्वुर 1400 साल पहले खत्म कर दिया। इस्लाम ने हर तबके के हकूक को महफूज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे कोल खड़े ने, आप अल्लाह की कसम उठाते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम वो बंदा मोमन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमन नहीं हो सकता। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जिस दे शर तो उस दे पड़ोसी महफूज ने। उलमा कहते हैं कि इत्थे पड़ोसी मुसलमान होवे या गैर मुस्लिम, अगर किसी मुसलमान दे शर तो महफूज नहीं है तो मोमन नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमन और सलामती का पैगाम दिता। पूरी दुनिया इस्लाम आने तो बाद एक अमन और सलामती आई, एक मुहब्बत का दर्स दिता। अज मगरब और मुआशरा कहता है कि इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब है, इस्लाम किताल का मजहब है, इस्लाम इंसानी हकूक की वायोलेशन का मजहब है। साडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत एक हदीस ही इस्लाम फोबिया के वास्ते काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान, वो मुसलमान जिहड़ा किसी गैर मुस्लिम नूं नाहक कतल करे, वो जन्नत की खुशबू के करीब ही नहीं आ सकता। अबू दाऊद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार कोई मुसलमान किसी मुआहिद, मुआहिद कहते हैं गैर मुस्लिम काफिर नूं, खबरदार कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम ते जुल्म करे, उसकी मर्जी तो बगैर उहदे कोल कोई चीज़ लवे, छीन के लवे, ताकत के जोर ते लवे, या उहदे कोल कोई ऐसा कम लवे जिहड़ी उहदी ताकत और इस्तात तो ज्यादा है, ते क़यामत के दिन उस गैर मुस्लिम के हक दे विच मैं खुद अल्लाह के हजूर दावा करांगा। नाजरीन, अज वक्त है कि असी मगरब और सारी दुनिया ये दसीए, ये साबित करिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम इंसानियत के हकूक की वायोलेशन का मजहब नहीं, इस्लाम अमन का मजहब है। जिस तरह इस्लाम और साडा दीन ये कहता है कि जिसने एक इंसान को कतल किया उसने पूरी इंसानियत को कतल कर दिता, उत्थे ही साडा दीन यह भी कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। साडे नबी ने क्या खूब कह दिता कि जिसने किसी गैर मुस्लिम का नाहक कतल किया उसके करीब जन्नत ते दूर, उस जन्नत की खुशबू भी उसके करीब तो नहीं गुजर सकती। अज असी दसना चाहांगे मगरब नूं और मगरबी मुआशरे कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम सलामती का मजहब है, इस्लाम ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन का मजहब नहीं है। इस्लाम ने ही तो इंसान को आके हकूक दिते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा लोगों ते रहम नहीं करता
अल्लाह उस ते रहम नहीं करेगा। नाज़रीन, अज सानूं साबित करना पएगा कि असी अमन पसंद कौम आ। मुसलमान दुनिया उत्ते इस्लाम एक रहमत बन गया है। दीन इस्लाम एक रहमत, अमन और सलामती का मजहब है। अज कुछ शर पसंद नहीं इस्लाम का ऐसा चेहरा मस्जिदों के धमाके करके, दरसगाहों के धमाके करके, गैर मुसलमान की इबादत गाहों के धमाके करके, जहलीयत की वजह तो, या ये मगरबी या इंटरनेशनल एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि कोई मुसलमान मस्जिद के धमाका नहीं कर सकता। अज वो चंद मिसाल लैके मीडिया से एडवरटाइज करके मगरब सन दहशतगर्द मजहब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सानू साबित करना पवेगा कि असी दहशतगर्द नहीं, असी अमन पसंद हाँ। इस्लाम सलामती का मजहब है। इस्लाम प्यार और मुहब्बत का मजहब है। इस्लाम भाईचारे का मजहब है। बहुत शुक्रिया जज़ाक।